while finding the multiplication of two matrices, say A and B, there is a condition on order of the matrices. Both the matrices must be some order. The order of the matrices. In what order they have the rows and columns. First suffix always denotes the number of rows, and the second suffix always denotes the number of columns. Here, under what condition the multiplication of matrices is there? Say A is of order m by n. Means if A has m rows and n columns, number of rows of the matrix A is m and number of columns of the matrix is n. And B is a matrix. B is a matrix with number of rows is n. Number of rows is m. Whatever may be the columns, say whatever may be p, whatever may be, they may be whatever may be the number p. In this case, AB is a matrix. AB is a matrix. Means product of A into B will be a matrix AB. And this matrix AB has the order m by p. Matrix AB has the order m by p. So what we require? We require number of columns of first matrix equals to number of rows of second matrix. Then and then we can multiply the two matrices. Otherwise, multiplication of matrices is not possible. We are unable to multiply the matrices. Means to multiply two matrices, their order are in this order. First matrix has the order m by n and second matrix has the order n by p. Let us see with the example. So what must be the possible order of the matrices to multiply the multiplication of two matrices? Now as in the above example you have the matrix of A having the order m by n and B has the n by p. M by n, n by p, then m by p will be the order of the multiplicative matrix AB. Now, in the above example, if we consider matrix B into matrix A, my question is that whether this matrix BA will exist or not. Whether BA will exist or not. Simple question. What is your code? No, BA will not exist because P and M are not same. P and M are different. And now my question is that BA will exist if what? Under what condition BA will exist? Under what condition BA will exist? BA will exist if and only if P and M are equal. P और M अगर equal हो गए, yes, order same नहीं, order same, हाँ yes, order same. P and M equal हो गए, then and then BA will equal, yes, automatically the order will become same. You are right. Now, in both the two examples, when you consider the matrix multiplication, very important concept, multiplication of matrices, the number of column of first matrix must be the number of rows of the second matrix. Multiplication of matrices. Multiplication. How we multiply the matrices is very important. Multiplication of matrices. Now, whether you have the two matrices of same order, what happens? Two matrices of same order. Whether we can multiply these two matrices. अगर हमारे पास same order matrices है, then whether we can multiply the two matrices. अब देखो ये हमारा example. This is the general definition of the multiplication of matrices.
Simultaneously, you have to write all the information. Yes. If anybody is new, you have to adjust with us. With the help of problems, we are going to explain it. Because you are new means you are new to the matrices. And if you are new to the matrices, then it will be very difficult for you to tell you again and again that what is matrix again and again. But simple. If the order of first matrix is having number of column n and second matrix is having number of column n, then we can find the matrix AB. M by P is the order of the matrix. Now let us come towards our example of multiplication of matrices. Matrix multiplication is a very interesting and important concept of the matrix. Now I will consider an example. Now in this example I will have say मेरे पास एक मैट्रिक्स है A equals to matrix A has some order and same rows. This is a matrix. If anybody is new, try to understand. This is a matrix. What is it? It is a matrix. Matrix is an arrangement of numbers. Arrangement of numbers is called a matrix. Matrix is nothing but arrangement of numbers. So it is an arrangement of numbers. ये एक नंबर की अरेंजमेंट है. Which number? Any real number. So, but these numbers are in terms of number of rows and number of columns. और वो सभी नंबर जो है ऑर्डर डिफरेंट तो भी होता है ना, बट ऑर्डर डिफरेंट का इम्पोर्टेंट नहीं है. ऑर्डर का डिफरेंट ही ऑर्डर हो सकती है. ऑर्डर सेम डिफरेंट वो के ऊपर डिपेंड नहीं है. ये है इसका ऑर्डर समझो 3/2 है ऑर्डर ऑफ ए, और बी का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? What must be the here? A has a number of columns 2. So B must have number of rows 2. Whatever may be the column. Column कुछ भी हो सकते हैं. B के column कुछ भी हो सकते हैं. Whatever may be the number of columns of B. सिर्फ इसके number of columns और दूसरे के number of rows equal होने चाहिए. It may be 2/2. इट में बी 2/3. आपने 2/3 भी बताया. ये 2/3 भी हो सकता है क्योंकि हमें इसके पहले का और दूसरे के पहला और पहले का दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है ऑर्डर में. पहले का दूसरा नंबर और दूसरे का पहला नंबर, तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है. तो A is order 3/2, B is order 2/3 या 2/2. We will take both the examples. Suppose A has a matrix is nothing but the arrangement of numbers. जो कोई नए है, ये 1 है, 2 है, because 2 columns है, 4 5 2 रो हो गए, 7 8 3 रो हो गए. अभी हम मैट्रिक्स बी में लेंगे 5. कितने रोज लेना है हमको? ओनली 2 रोज आर परमिटेड है. 2 रो ही हमें, जितने नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स में उतने नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में. तो हम कॉलम कितने भी ले सकते हैं. 5 3 1 हमने 3 कॉलम लिए. 6 2 -1 हमने 3 कॉलम लिए. 2/3 भी हो सकता है. अब 2/2 भी चलेगा, मतलब हम 2/1 भी चलेगा. 2/1 मतलब नंबर ऑफ रोज उसके सेम चाहिए, वॉट एवर मे बी द नंबर ऑफ कॉलम. पहले के नंबर ऑफ रोज एंड दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम. 3/5 एंड 6/3 विल नॉट मल्टीप्लाई. एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर अगर एक मैट्रिक्स है 3/5 और दूसरा है 6/3, नो, ये दोनों सेम चाहिए. बट हम आपको बताते हैं, आपके एग्जाम्पल को हम चेंज करेंगे. अब अगर ये 6/3 पहले लिखते हो और 3/5 दूसरा लिखते हो, 6/3 और दूसरा आप अगर 3/5 लिखते तो उस केस में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा. उस केस में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा. पहले इसके ऊपर ही सोचते हैं. क्यों? पहले का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे का नंबर ऑफ रोज, ये दोनों साथ में आने वाले नंबर इक्वल चाहिए. So these are the things related with the multiplication of matrices. When you go forward, simultaneously लिखते जाइए. ये डिस्कशन चल रहा है वो. जब हम आगे जाएंगे
तो ये मल्टीप्लिकेशन होता कैसे, ये पहले समझ में आया कि पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। अब मैं अभी कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ए 4/5, बी 3/5, सी फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो नंबर इक्वल होना चाहिए। यस यस, ऐसे ही याद रखना है। मैट्रिक्स बी 3/5, मैट्रिक्स सी 5/4, मैट्रिक्स डी 5/3, मैट्रिक्स ई, चलो ये चार है। तो मुझे बताइए वेदर ए बी इज पॉसिबल, वेदर द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, यस या नो। ए बी नहीं पॉसिबल, 4/5 और 3/5, नो, ए बी इज नॉट पॉसिबल। ए बी में क्या है, देखो अगर हम ए बी की चर्चा करें, ये अगर हम ए बी की चर्चा करें तो ये क्या है 4/5 और बी क्या है 3/5, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो ये बी इज नॉट पॉसिबल। अभी हम बी ए के बारे में सोचो, सोचो बी ए के बारे में, आपको लिखना है साइमल्टेनियसली बी ए, बी ए के बारे में सोचो, बी का ऑर्डर क्या है 3/5 और ए का ऑर्डर क्या है 4/5, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। BA is not conformable for matrix multiplication. BA does not exist. BA does not exist. AB does not exist. चलो अब मैट्रिक्स AC के बारे में सोचेंगे, आपको लिखना है साइमल्टेनियसली। We will think about the matrix AC. Yes, मैट्रिक्स AC is multiplicable. मैट्रिक्स AC को हम मल्टीप्लाई कर सकते हो। Okay, we can multiply the matrix A and C. बाकी लोग आंसर ही देते नहीं क्या, आप लोग सिर्फ ऐसे बैठे हो क्या? हाँ, कितने लोग हैं यहाँ? सिद्ध श्रीवास्तव, सुरेश पाटिल, सार्थक, समीन, ऋषिकेश, रोशन, रितेश, सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं सुरेश जिंजुर्डे, क्षितिज भावर। बाद में ये रिकॉर्डिंग फैसिलिटी बंद करने वाला हूँ मैं अगर आप ऐसा करोगे तो। चंद्रशेखर, अक्षय, प्रथम, प्रद्युम्न, आंसर नहीं आते आपके। चलो कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गए? अगर हम ए सी कहे तो ए सी पॉसिबल है, ए एंड सी प्रोडक्ट इज पॉसिबल, वेरी गुड। ए एंड डी, देखो वेदर ए एंड डी इज पॉसिबल, ए सी पॉसिबल है, यस। अभी ए एंड डी पूछा मैंने, व्हाट अबाउट ए एंड डी, वेदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड डी इज पॉसिबल, यस। रितेश आंसर आया है, यस। वेदर ए एंड डी इज पॉसिबल और नॉट, सब लोगों को आंसर देना है। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, ये कोई गाना सुनना नहीं है, रिकॉर्ड लगाया गाना सुने। जब हम म्यूजिक सुनते उसमें फीलिंग्स रहते हैं, इसमें फीलिंग वगैरह कुछ नहीं रहता, इसमें एक्टिव टैक्टिक्स रहते, टेक्निक, टेक्निक टेक्निक में कोई फीलिंग नहीं रहता। अभी हम पूछ रहे वेदर ए सी इज पॉसिबल, यस। अभी बी डी और बी सी में बताइए, बी डी और बी सी में वेदर बी सी एंड बी डी आर पॉसिबल, यस बी सी इज पॉसिबल। व्हाट अबाउट बी डी, multiplication of b and d, yes, multiplication of b and d possible. So write down the list of the possible multiplication. ऑर्डर सेम होगा तो मल्टीप्लीकेशन होता है, वो तो सवाल ही नहीं रहता। बी डी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बी डी में क्या है 3/5, 5/3, यस। अब पहला मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड?
क्वेश्चन लिखो और उसके आंसर लिखो। ए बी पॉसिबल है? नहीं। ए सी? यस, ए सी पॉसिबल है। ए डी पॉसिबल है। ठीक है, बीच में नहीं आना, पहले आना। ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तो मैं ए सी पॉसिबल है, बी सी पॉसिबल है, बी डी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी हम आपको पूछ रहे हैं जो पॉसिबल आपने निकाले हैं। सी बी पॉसिबल है क्या? सी बी वेदर, जो अभी उल्टा करके देखो ना, ए बी बी सी, ए बी नहीं है पॉसिबल, बी ए नहीं है पॉसिबल, बी सी पॉसिबल है, सी बी पॉसिबल है क्या? देखो सी बी नहीं है। सी ए पॉसिबल है क्या? देखो सी डी पॉसिबल है क्या? देखो डी सी पॉसिबल, डी बी पॉसिबल, डी ए उल्टा भी करके देखना है हर एक में। तो उसमें नम पॉसिबल मैट्रिसेस का आपको लिस्ट बताना है पॉसिबल। ए सी ए डी, बी सी बी डी, सी ए पॉसिबल है, सी ए पॉसिबल है, और डी बी पॉसिबल है, डी बी। दीज आर द नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच कैन बी मल्टीप्लाई। डी बी भी पॉसिबल है, यस। सब लोग लिखो पेयर। अब मेरा क्वेश्चन आगे का है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर सेम होगी तो सवाल ही नहीं रहता है। ऑर्डर सेम होगी तो सवाल ही नहीं रहता है। अरे 3/3 इंटू 3/3, कुछ भी नहीं ना उसमें, जाएंगे ना वहां तक। अभी हम पूछ रहे हैं बी ए पॉसिबल है क्या? नहीं, बी ए नहीं पॉसिबल। 3/5 एंड 4, बी ए नहीं पॉसिबल। अब मेरा आगे का सवाल है, सुरेश पाटिल, सिंपल केस है। अब भूल गए क्या? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये एन की वैल्यू, और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, मतलब ये पहली वैल्यू, ये दोनों सेम चाहिए। पहले के कॉलम का नंबर और दूसरे का रो का नंबर सेम चाहिए। देखो ये 4/5 है और बी 3/5, तो इसका कॉलम नंबर 5 है और रो नंबर इसका 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं था, हमने लिखा। बी ए के लिए अगर हम लिखते, बी ए के लिए, बी ए के लिए, यस यस। चलो एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब बीच में एक क्वेश्चन आया कि सेम ऑर्डर होगा। अरे सेम ऑर्डर देखो, मेरे पास समझो मैट्रिक्स एक्स है, उसका ऑर्डर है 4/4, और मैट्रिक्स वाई है, उसका भी ऑर्डर 4/4। हमें ये देखना है बस, इक्वल है, तो सवाल ही नहीं आता। अब चलो, जो मैट्रिक्स पॉसिबल है उसमें से पहला पॉसिबल मैट्रिक्स है हमारा ए सी, 4/5 5/4 है क्या? नहीं, ए सी। सब लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, वेदर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए सी इज पॉसिबल और नॉट। यस। तो मेरा आगे का क्वेश्चन है, यस यस यस, मैं पहले आपको हिंट भी देता हूँ। मेरा आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो। हाँ, ए सी इज पॉसिबल, तो मैं आपको पहले हिंट दे रहा हूँ और बाद में पूछता हूँ। समझो मैट्रिक्स ए है m/n, और बी हमारा था n बाय कुछ भी नंबर p। तो हमारा ए बी कैसा था? m/n n/p। तो ए बी का ऑर्डर हमारा क्या था? m/p। ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट, अभी हमारा हेडिंग क्या है? पहला, हाँ, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट पहला था, अंडर व्हाट कंडीशन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो पहले कंडीशन को कंप्लीट करो। इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। लिखो, यू शुड बी विद द नोटबुक। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देन द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब हम आगे जाएंगे, अभी देखेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
हाँ, आपका क्वेश्चन समझ में आया मुझे। आपने पूछा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, नहीं वो कंडीशन नहीं है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम वाली नहीं बताई मैंने, बराबर है। मैंने ये स्क्वायर मैट्रिक्स बताया। ये एक क्वेश्चन है बीच में कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, था स्टूडेंट ने पूछा है, समझो 3/5 है और बी भी 3/5 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं, पॉसिबिलिटी डिपेंड ऑन व्हाट, पॉसिबिलिटी ऑर्डर सेम के ऊपर डिपेंड नहीं है, पॉसिबिलिटी पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज के ऊपर डिपेंड है। हाँ, आपका बराबर है ना, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अरे अभी जो आप मैंने बताया वो स्क्वायर मैट्रिक्स में है। टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर ऑलवेज मल्टीप्लाइड। गुड क्वेश्चन। अब हम जाएंगे, चलो आपको समझ में आया, पहले के नंबर ऑफ रो कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल चाहिए। अभी मेरा वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट, हेडिंग लिखो, ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की ऑर्डर क्या होती है। तो मेरे पास एग्जांपल है, ए इज m by n है, बी इज n by p है, तो ये भी होगा m n by p। पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रो सेम है ना, तो उनको हटा के जो बचते m by p, m by p मतलब फाइनल ऑर्डर में पहले के रोज और दूसरे का कॉलम आता है, फाइनल ऑर्डर में, फाइनल ऑर्डर में पहले के रोज और दूसरे का कॉलम, बीच में जो कॉमन है ना उसको हटा देना पड़ता है। तो चलो एसी की ऑर्डर क्या होगी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एसी। अब कंफ्यूज होना मत, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एसी। मैट्रिक्स ए सी में क्या है, 4/5 और 5/4 है। नहीं नहीं नहीं, m by p होता है ना, m by p। अब n by n कर रहे हो, m by n by p, तो m by p होता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए सी। यस, 4/4। मैट्रिक्स ए सी इज ऑफ ऑर्डर 4/4, बहुत सही। ये टेक्निक आपको लिख कर लेनी है और सोचना है उसके बारे में। You will think completely on it. Then and then you can solve the question. मैट्रिक्स एसी की ऑर्डर क्या होगी, एडी, एडी का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एडी। एडी का ऑर्डर क्या है, 4/3। यस, मैं पहले आपको बताता हूँ एसी, एसी का ऑर्डर कैसे आता है वो बताता हूँ, 4/5 और सी है 5/4। तो ये दोनों इक्वल हो गए, मैट्रिक्स कंफर्म हुआ मल्टीप्लीकेशन। बट ऑर्डर क्या होती है, लास्ट नंबर। तो एसी का ऑर्डर है 4/4, एक पहला। अब एडी के बारे में, मैट्रिक्स एडी, तो एडी में क्या है बताइए। एडी में ए का ऑर्डर है 4/5 और डी का ऑर्डर है 5/3, दोनों सेम हो गए, तो ऑर्डर हुआ रिमेनिंग नंबर। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर। नहीं नहीं, मल्टीप्लीकेशन मैं बाद में बताऊंगा, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है वो बाद में बताऊंगा, सिर्फ मैं हम ऑर्डर और रो बता रहे हैं। तो एडी का ऑर्डर होगा 4/3 होगा, ऑर्डर ऑफ एडी इज 4/3। अभी मेरा क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन होता है हमारा डी, डीबी होता है डीबी, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डीबी, डीबी पूछा मैंने। डीबी का ऑर्डर 3/3 है। अच्छा, वेरी गुड। आप सब लोग डीबी का ऑर्डर फाइंड कीजिए, डीबी। आप सीए का ऑर्डर लिखिए, सीए का ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सीए। चलो 4-5 ही लोग आंसर देते हैं, बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं होते। सीए का ऑर्डर
सी का ऑर्डर है 5/5. गुड. अब हम जाएंगे एग्जाम्पल की ओर. गुड. हाउ वी मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस. चलो ठीक है. तो यू नो हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स. देखिए हमारे सामने क्वेश्चन होगा तो कुछ भी नहीं है, हमें ऑर्डर मिल जाती है, प्रोसेस मालूम होगा. बट सवाल है कि क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ मैट्रिसेस के ऑर्डर दिए, तो उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन लिखना है, कैसे आंसर देना है. तो व्हाट वी हैव सीन नाउ, जस्ट पहले अंडर व्हाट कंडीशन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और दूसरा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस. अब ये मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल केस है, बहुत ही सिंपल है. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की एक प्रोसेस है. रिफ्रेश योर माइंड. हम आपको मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू शो हाउ द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड. नाउ इफ आई हैव द मैट्रिक्स ए, इसमें कुछ नंबर्स है 2, 5, 7, 8, 9 -1. What are the order of the matrix is 2/3. So what must be the number of column of the number